بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 18 سیکنڈ پلے ہے فرسٹ ایئر کا A Visit to Small Planet. اسپیلڈنگ کہتا ہے Where are you from؟ کریٹن سے پوچھتا ہے. اویسیولی وہ جان چھڑاتے ہوئے اوائڈ کرتے ہوئے another place ایک اور جگہ سے ہوں. وہ اسپیلڈنگ on the earth on this earth of course وہ کہتا ہے اس زمین سے نا. کریٹن no not from on this earth planet اس سیارے سے میں نہیں ہوں. ایلن کہتی ہے Are you from Mars؟ مارس سے ہو؟ کریٹن oh no dear not Mars مریخ سے نہیں ہوں. There is nobody on Mars مریخ پہ کوئی نہیں رہتا ہے. At last no one I know جہاں تک مجھے علم ہے کوئی نہیں رہتا. ایلن کہتی ہے I'm sure you are teasing us آپ ہمیں تنگ کر رہے ہو ڈسٹرب کر رہے ہو. Teasing us and this is some kind of publicity stunt اور یہ تمہارا شہرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسٹنٹ کا مطلب اسٹریٹجی ہوتا ہے. پبلسٹی فیم شہرت پرومیننس. کریٹن کہتا ہے نو آئی ریئلی ایم فرام اندر پلیس میں واقعتاً کسی اور سیارے سے ہوں. اسپیلڈنگ I don't suppose you are consent to my interviewing you on television. میرا نہیں خیال سپوز کا مطلب امیجن کرنا لیٹ کرنا. کنسنٹ کا مطلب الاؤ کرنا اجازت دینا. کہتا ہے آپ میرا انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں دو گے ٹیلی ویژن پہ. کریٹن کہتا ہے I don't think your authority will like it. میرا نہیں خیال کہ آپ کی اتھارٹیز اس کو پسند کریں گے. آپ کے حکام they are terribly upset as it is کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ کو how do you know آپ کو کیسے پتا تھا؟ کریٹن well I pick up the things میں چیزوں کو سمجھ لیتا ہوں. pick out یا pick up اٹھانا ہوتا ہے. pick out سمجھنا ہوتا ہے. in fact for instance I know مجھے معلوم ہے in a few minutes a number of people from your army آپ کی فوج کے بہت سارے لوگ number of people will be here to question me مجھ سے سوال کرنے کے لیے یہاں پہ ہوں گے. اینڈ دے لائک یور ٹون بائی ڈاؤٹ اور انہیں بھی شک ہوگا آپ کی طرح شک ہوگا. ٹون بائی ڈاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈاؤٹ فل ہونا اسکیپٹک ہونا انسرٹن ہونا اس کو ہم کہتے ہیں. اسپیلڈنگ ہاؤ ایکسٹراآرڈنری کتنی غیر معمولی بات ہے کتنی اعلیٰ بات ہے. ایکسٹراآرڈنری. ایلن کہتی ہے وائی ڈڈ یو کم ہیئر یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ کریٹر سمپلی وزٹ ٹو اسمال پلانٹ اس چھوٹے سے سیارے پہ سیر کرنے کے لیے آنے کے لیے. I have been studying it for years. میں کئی سالوں سے یا سال ہر سال سے اس کو مطالعہ کر رہا ہوں. In fact one might say در حقیقت کوئی بھی کہہ سکتا ہے you people are my hobby. آپ لوگ میرا مشغلہ ہو فارغ وقت کا مشغلہ ہو. Especially this period خاص طور پہ period of your development آپ کا یہ جو ترقی کا دور ہے وہ میرا ایک مشغلہ ہے. اس دور میں آپ لوگوں کا مطالعہ کرنا. جان are you the first person from your planet to travel in space like that؟ اسپیس سے آنے والے کیا آپ نے پلانٹ میں سے آواز شخص ہو؟ جی اب یہاں پہ پہلے ذرا سوالوں پہ آتے ہیں. اس میں سوال کیا ہے؟ What is the purpose of study؟ purpose of Creighton study کیا ہے؟ کریٹنز کے مطالعہ کا کیا تھیم ہے پرپز ہے یا تھیم ہے یعنی کیا ٹارگٹ کیا ہے اس کا کس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے. تو وہ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ وہ کس کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے. وہ ہیومن سیولائزیشن کو ہیومن ایموشنز کو اور ارتھ کو ایز اے ہول اسٹڈی کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس کا پرپز آف اسٹڈی ہو گیا. اس کے بعد ہے جی سوال ہم نے دیکھیں گے یہاں پہ باقی سوال جو ہے نا یہاں پہ کوئی مین نہیں ہے. باقی جو ہم نے پیچھے کر لیا تھا کہ وہ کیا اس کے بارے میں ویو تھا اور کس طرح سے وہ اسپیلڈنگ کا کیا ویو تھا اس کے بارے میں کریٹن کے بارے میں. اب آتے ہیں جی ہم گرامیٹیکل اسٹرکچرز کے بعد کو اسٹڈی کرتے ہیں. دیر از نو بڈی یہ دیر از اس طرح سے آ جائے تو یہ دیر از ہے تو اس کو ہم نے پاسٹ میں نہیں لگاتے. اس طرح سے اٹس جو ہوتا ہے یہ اٹ از ہے تو اس کو بھی پاسٹ میں نہیں لگاتے. اور اٹس جو نا وہ اٹ ہیز بھی ہو سکتا ہے اور اس کو بھی ہم نے پاسٹ میں استعمال نہیں کرتے.
اور اسی طرح سے آئل ہے، آئل اور وونٹ. یہ آئل جو ہے وہ آئی شیل ہے اور وونٹ جو ہے وہ ول ناٹ ہے. تو یہ سارے کے سارے ایکسپریشن ناٹ یوزڈ ان پاسٹ کلاسز، پاسٹ کی کلاسز میں استعمال نہیں کرتے، ان سبھی کو ایکسپریشن کو یوز نہیں کرتے ہم. اور اسی طرح سے یہ ہمارے ایکسپریشن ہے جو ہم یوز نہیں کرتے. نیکسٹ ہے جی، اس کے بعد ہے جب ہم نے لگانا ہو پوزیسو ایڈجیکٹو. پوزیسو ایڈجیکٹو کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے یور ہے، مائی ہے، از ہے، ہر ہے، اٹس ہے، دیر ہے، آر ہے. ان سبھی کے بعد ہم نے کیا یوز کرتے ہیں؟ یا ہم فورتھ فارم لگاتے ہیں یا ہم نون استعمال کرتے ہیں. جیسے آئی لائک یور لیو یا لیونگ دا ہاؤس. تو یہاں پہ لیونگ دا ہاؤس آ جائے گا کیونکہ اس کی جگہ پہ ہم نے کیا یوز کرنا ہے؟ جیرنڈ کا استعمال کرنا ہے. اسپیک ٹیریبلی، اپسیٹ ٹیریبلی وہ ایڈورب ہے کس کا؟ اپسیٹ کا، اپسیٹ ایڈجیکٹو ہے. اور پک آؤٹ اور پک اپ کا میں نے فرق بتا دیا. پک اپ اٹھانا، پک آؤٹ سمجھنا. پک اپ بھی سم ٹائم ہم سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. A number of people بہت سارے لوگ، اور دا نمبر کا مطلب تعداد ہوتا ہے. دا نمبر آف پیپل از اور a number of people are. ٹرن بائی ڈاٹ کا ہو گیا. فار ایئر جب آ جائے تو وہاں پہ ہم پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں گے، جیسے ہی ہیز بین لیونگ ہیئر فار ایئرس. اور اسپیشلی جب ہم استعمال کرتے ہیں، جب ہم اسپیشلی یوز کرتے ہیں تو کسی ناؤن کے ساتھ جب آئے گا تو وہ اسپیشلی لگائیں گے. جیسے ہم کہہ دیں اس طرح سے کہ all were present یا I was concerned about all, especially یہ لگائیں گے ایلی کے، خاص طور پہ ایلی کے لیے. اب یہاں پہ اسپیشلی کا استعمال جب کیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے نون استعمال کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک ہوتا ہے اسپیشلی، دس ہاؤس از اسپیشلی پریپیئرڈ. جب یہ ورب کے ساتھ استعمال کریں تو پھر ہم موسٹلی اسپیشلی لگاتے ہیں، اور جب ہم ناؤن کے ساتھ فریز بناتے ہیں تو پھر ہم اسپیشلی لگاتے ہیں. یہ دو طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. جی بچوں، ابھی تک کوئی سوال ہو آپ کی طرف سے تو پوچھ لیں. ادروائز گو ٹو دا ایکسرسائز. میٹنگ دا پیپل. آئی ڈس لائک یور میٹنگ ہو جائے گا. اچھا، یہاں پہ یو میٹنگ نہیں ہوگا، یور میٹنگ ادرس پیپل ہوگا. would like to visit. وڈ لائک ٹو وزٹ ہو گیا. شاباش. Establishment. فار دا اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشنگ، فار ہر اسٹیبلشنگ این انسٹیٹیوشن. جب آپ نے آبجیکٹ آ رہا ہے انسٹیٹیوشن تو پھر ہم نے کیا یوز کرنا ہے؟ اسٹیبلشنگ استعمال کریں گے. جو آبجیکٹ نہ آ رہا ہو تو پھر ہم یوز کریں گے اسٹیبلشمنٹ استعمال کریں گے. جی یہ تو تھا جی ہماری پہلی سلائیڈ. now move to the next. کریٹن او نو ایوری ون ٹریولس ہو وانٹس ٹو. کریٹن کہتا ہے کہ ہر بندہ جو چاہتا ہے وہ وزٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ وزٹ کرتا ہے. اصل میں یہ ہے it is just like it's just that no one wants to visit you. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی آپ کی طرف آنا نہیں چاہتا. I can't think why. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں. I always have. میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں آپ کی طرف آنا. You would be surprised what a thorough study I have made. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کتنی مکمل اسٹڈی کی ہے. تھارو کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ اسٹڈی. I have recites. اب وہ ریویلیشن کرتا ہے. یہاں پہ سوال ہے ہمارا کہ what revelation
revelation did he make about the earth? अर्थ के बारे में वो क्या क्या रिवील करता है, रेवलेशन जो ना वो करता है, कौन कौन सी रेवलेशन करता है, तो वो आपने यहाँ पे बताएंगे, देखेंगे कौन कौन सी वो चीजें बताता है जमीन के बारे में। वो कहता है, पहला पॉइंट है जी, ये जाहिर है ये फिक्शनल है, कोई रियल में नहीं है, ये नहीं समझना है कि वो सही बता रहा है, ये फिक्शनल है, जस्ट ये नहीं कि उसको साइज स्मॉल प्लैनेट शो कर रहा है या दिखा रहा है। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स, छोटा सा कॉन्टिनेंट है, पांच कॉन्टिनेंट्स हैं, बरे आजम है, हालांकि 7 हैं, विद नंबर ऑफ लार्ज आइलैंड्स हैं, उसके बाद ज्यादा पानी है, 1 मून है, और सिविलाइजेशन अभी इब्तदा में है। ओनली जस्ट का मतलब होता है अभी इब्तदा में, बिगिनिंग में, शुरू में है, शुरू की मराहिल में है। तो ये रेवलेशन है, ये व्हाट डिड ही रिवील अबाउट द अर्थ, जमीन के बारे में उसने क्या रिवील किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिवील किया उसने जमीन के बारे में कि इब्तदा में सिविलाइजेशन है, उसके बाद मून एक है, ज्यादातर पानी है, नंबर ऑफ आइलैंड्स और 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये जरा वो रिविलेशन करता है। उसके बाद है स्पेल्डिंग जस्ट बिगिनिंग, माय डियर सर वी हैव हैड, हमने तो बहुत सारी तरक्की कर ली है, करेक्टन ब्लैंडली यू आर द इनिशियल स्टेजेस, अभी आप इब्तदाई मराहिल में हैं, अभी आप जो ना वो इब्तदाई मराहिल में हैं, द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेजेस, और ये सबसे ज्यादा मजे वाली स्टेज है, फैसिनेटिंग स्टेजेस, फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा तल्लुक है। आई डू होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग, मुझे भरपूर उम्मीद है कि मैं आप पर क्या होगा, रोब नहीं चला रहा, आपको डिक्टेट नहीं कर रहा। पैट्रोनाइज का मतलब होता है किसी पे रोब चलाना, किसी पर क्या होगा, सुपरवाइज करना, किसी को पर हुक्म चलाने को हम कहते हैं पैट्रोनाइजिंग, जैसे पैटर्न इन चीफ होता है। एलन, वेल वी आर वेरी प्राउड, एलन कहती है हम बहुत, हमें फख्र है इस बात पे कि हमारी जो है वो तरक्की हो रही है। क्रेटन, आई नो दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट एंडेयरिंग प्रिमिटिव ट्रेट्स, आपका ये उन कदीम क्वालिटीज में से, हमेशा रहने वाली क्वालिटीज में से एक है। मोस्ट एंडेयरिंग, एंडेयरिंग मीन रहने वाला, रिमेनिंग, और उसके बाद प्रिमिटिव का मतलब एंशिएंट या ओल्ड, पुरानी रहने वाली वो क्वालिटीज में से एक है। ट्रेट्स का मतलब क्वालिटीज होता है। ओ आई कांट बिलीव आई एम हियर एट लास्ट, मुझे यकीन नहीं आता मैं बिलाखिर यहाँ पे पहुंच गया हूँ। जनरल पावर विगरस प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अब उसके बारे में कह रहा है कि ये सिविलाइजेशन अभी इब्तदा में है और अभी इंसानी तहजीब, असल में ये क्रिटिसाइज कर रहा है। यहाँ पे क्रिटिसाइज किस चीज पे है, वो राइटर किस चीज पे क्रिटिसिज्म करता है, क्रिटिसिज्म ऑन सोसाइटी, वो सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म करता है कि किस तरह से हम अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम तरक्की कर गए हैं, लेकिन इनफैक्ट हम अभी तरक्की के इस रास्ते में बहुत पीछे हैं। इस तरह से वो क्रिटिसाइज करता है उसको, जमीनी लोगों को, राइटर इसके जरिए से। वो कहता है कि वो कहते हैं ना कि हम फख्र है हमें इस अपने विरसे पे, अब इस तरक्की पे, तो कहता है ये तो आपका बड़ा पुराना है, पुरानी क्वालिटी है कि आप अपनी क्वालिटीज को खत्म नहीं करते, प्राइड को खत्म नहीं करते, प्रेजुडिस को खत्म नहीं करते, तो आप हमेशा से चलाए रखते हो इसको। ओ आई कांट बिलीव आई एम हियर एट लास्ट। अब जनरल पावर्स के बारे में अगला सवाल है कि हु वाज जनरल पावर्स, जनरल पावर्स कौन था। तो ये जनरल पावर्स जो है ये हेड ऑफ वो नेशनल गार्ड था। ये नेशनल गार्ड उनकी, समझ लें ये फौज है, रिजर्व फौज होती है जिसमें फेडरल और दूसरा स्टेट्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं। ये रिजर्व फौज के तौर पे इस्तेमाल होती है नेशनल गार्ड्स की, और ये फौज की तरह ही होती है, एयरफोर्स और आर्मी इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। और मोर ओवर ये स्टेट और मतलब कि उसकी मुश्तरका होती है। वैसे अक्सर उसके इंस्टीट्यूशन जो है ना वो या स्टेट के हैं या फिर वो फेडरल के हैं, लेकिन ये दोनों में इस्तेमाल होती है, रिजर्व फौज के तौर पे होती है। नेशनल गार्ड एंड हिज एड एंटर, एड का मतलब असिस्टेंट, विगरस का मतलब एम्बिशियस प्रोडक्ट है। तो अभी यहाँ पे जनरल पावर्स के बारे में जो नोट लिखना है, एम्बिशियस प्रोडक्ट ऑफ नेशनल गार्ड है,
पावर कहता है ऑल राइट फोक्स, अच्छा लोगो ठीक है सब, प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स, इसको फौज ने आ घेरा है। वेयर इज द मॉन्स्टर, वो भूत कहाँ गया? ट्रूप्स का मतलब सोल्जर, मॉन्स्टर से मुराद गोस्ट, वो भूत कहाँ पे गया? क्रेटन, आई डियर जनरल आई एम द मॉन्स्टर, मैं ही भूत हूँ। पावर, व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर, ये तुमने किस लिए पहना हुआ है? ड्रेस अप का मतलब होता है किसी फॉर्मल ओकेजन के लिए लिबास पहनने को हम कहते हैं। फैंसी ड्रेस पार्टी हो रही कहीं? क्रेटन, आई हैड होप्ड टू बी द कस्ट्यूम ऑफ द पीरियड, मैंने सोचा था कि इस दौर में यही लिबास पहनते होंगे, यानी कि मैंने समझा था कि तुम अभी तरक्की के उस लेवल पे होंगे जिस तरह से 1860 का जो फैशन था। तो इससे मतलब ये भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि मैंने सोचा था कि तुम इतनी तरक्की नहीं की है, तुम बहुत पीछे हो अभी, यानी 1860 की तरह तुम वही, तुम्हारी लड़ाइयाँ झगड़े वही, फसाद वही चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तो ये था जी हमारा वो टेक्स्ट है, इसमें से हम जनरल पार्ट्स का क्वेश्चन है और कौन सी रेवोल्यूशन हमें बताता है उसके बारे में, किसके बारे में? जमीन के बारे में, और किस तरह से राइटर क्रिटिसाइज करता है। आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे देखें, थारो से मुराद एक थ्रू होता है, एक थारो होता है। थ्रू प्रेपोजिशन है, इससे मुराद क्या होता है? में से, यानी क्या होगा? किसी चीज में से गुजर जाना। और एक थारो होता है, थारो का मतलब होता है कंप्लीट, ये एडजेक्टिव है, थारो एडजेक्टिव है और क्या है वो मतलब कि कंप्लीट का मीनिंग देता है। और थ्रू ये प्रेपोजिशन है, और इससे मुराद क्या होता है? प्रेपोजिशन यहाँ पे में से के लिए इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज में से गुजर रहे हो। उसके बाद है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी मोस्टली वाटर, इट इज मोस्टली वाटर, इट इज मोस्टली वाटर। अब यहाँ पे यूज करेंगे तो जब हम वहां पे आगे लगाएंगे इट इज मोस्टली वाटर एवरीवेयर या ऑन इट, वरना हम यूज करेंगे देयर इज ओनली मोस्टली वाटर, वहां पे किसी चीज की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए देयर का इस्तेमाल करते हैं। या इट हैड मोस्टली वाटर हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ओनली जस्ट हम इस्तेमाल करें तो ये हम इस्तेमाल कर, इसका मतलब होता है जो बिल्कुल थोड़ा सा हो, बिल्कुल थोड़े से के लिए हम ओनली जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ओनली इस्तेमाल किया जाता है, दो फंक्शन होते हैं ओनली के, ओनली एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं और ओनली एज अ एडवर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, ओनली को इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव जब होगा तो उसका मतलब होगा, एडजेक्टिव का जब इस्तेमाल करना होगा तो ये एडजेक्टिव होगा तो फिर बिफोर नाउन होना चाहिए, यानी जिस नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं उसी के पहले लगाना चाहिए। और एडवर्ब का फंक्शन जो है ना वो उसी हिसाब से है कि इसको अगर वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे या वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से अदर एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। ओनली का जो इस्तेमाल होता है ये बड़ा ट्रिकी है थोड़ा सा। ड्रेस्ड के साथ हम दो प्रेपोजिशन लगाते हैं, ड्रेस्ड इन और ड्रेस्ड अप। किसी ओकेजन के लिए तैयार होना ये ड्रेस्ड अप होता है, और वैसे लिबास पहना हो तो ड्रेस्ड इन हो जाएगा। ये दो प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, अब आपने क्वेश्चन वो सेंटेंसेस को देखना है और इस पे क्वेश्चन करना है जी बच्चों। वो सेंटेंस ठीक करने हैं, शाबाश करिए। ओनली जस्ट नहीं, अब यहाँ पे ओनली कौन है? ओनली ही वाज क्या होगा, या क्या होगा? ही वाज ओनली, या ही ओनली ही वाज द पर्सन हु कुड रीड, यानी उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? ओनली ही वाज द पर्सन हु कुड रीड, यानी उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तो ओनली जाहिर है किसी नाउन सर के मीनिंग में, ओनली यहाँ पे ओनली देखें वन हो सकता ओनली वन हो सकता है, ही वाज द ओनली वन हु कुड रीड, यानी ओनली के साथ सर जाहिर ओनली है एडवर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है? मैंने बताया ना कि वो वर्ब और एडजेक्टिव के साथ लगेगा जो उसका बेसिक फंक्शन है।
اور جو ہم استعمال کرنا ہے جب ہم نے اس کو ایز اے ایڈجیکٹو استعمال کرنا تو وہ ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ ہونا چاہیے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اونلی اس کے ساتھ جو ہے وہ ناؤن استعمال کریں گے یا پروناؤن استعمال کریں گے تبھی یہ ایڈجیکٹو کا رول پلے کرے گا نا. ہی واز دا اونلی ون ہو کوڈ ریڈ یا اونلی ہی کوڈ ریڈ, ہی کوڈ ریڈ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی اونلی اس ناؤن کے ساتھ استعمال کریں گے. جی نیکسٹ والا دیکھیے گا. Only Only Jason. Jason. Only Jason knows where keys is kept. اب یہ جیسن کے میننگ میں اضافہ کرے تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. جی شاباش. اب اونلی دیکھ رہے that only your cup? Only book. اب یہاں پہ از دیٹ اونلی یور کاپی آف دیٹ بک. یا یہاں پہ کیا آ سکتا ہے؟ بک کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, دا اونلی بک. تو اس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں جس نون کے میننگ میں وہ اضافہ کرو. شاباش. نیکسٹ والا Only She is only اونلی 16 ہو گیا. اس کے ساتھ ہم نے اونلی 16 یہ 16 کے میننگ میں اضافہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے نیکسٹ سلائیڈ ہے پیج نمبر 19 پہ. As you see, I am about 100 years too late. جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں 100 سال لیٹ ہوں, یعنی دیر سے آیا ہوں. کیا ہے جی 100 year late. اب یہاں پہ 100 ہے, ادھر 100 کے ساتھ لگ رہا ہے, ایئر کے ساتھ نہیں ہے. ایئر کے کوئی میننگ میں اضافہ کر رہا 100, تو 100 چاہے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایئر آ جائے گا. ٹو لیٹ. Who is Joker? وہ روجر کو کہتا ہے, روجر یہ کون ہے جوکر؟ This is Mr. Creighton ہے جنرل پاس. کہتے ہیں Mr. Creighton arrived in this thing outside. جو باہر جو چیز ہے یعنی اڑن تشتری ہے, اسپیس شپ ہے, اس میں یہ آیا ہوا ہے. He is from another planet. وہ ایک اور سیارے سے آیا ہوا. I don't believe it. مجھے یقین نہیں آتا. It is true. یہ سچ ہے. We can't say it. ہم جو ہے وہ یہ دوسرے سیارے سے آیا ہوا ہے. I don't believe it. مجھے یقین نہیں آتا. It's true. We saw him get out of the flying saucer. ہم نے اسے اس سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا. Flying saucer. اڑن تشتری سے. Captain, go down and look at the ship. وہ ایڈ اپنے نائب سے, اپنے جونیئر سے, اپنے سبارڈینیٹ سے کہتا ہے ذرا شپ کی طرف جاؤ, اس پہ ایک نظر دیکھو. بٹ بی کیئرفل, لیکن احتیاط کرنا. ڈونٹ ٹچ اینی تھنگ, کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا. ڈونٹ لیٹ اینی بڈی ایلس ڈیئر, اور کسی کو پاس بھی نہ آنے دینا. یعنی نہ آنے دینا کیا ہوگا؟ لیٹ نیئر ہو گیا, کسی کو پاس بھی نہ آنے دینا. ایڈ چلا جاتا ہے سو یور فرام انادر پلانٹ. اچھا تو پھر کسی اور سیارے سے ہو. یس مائی دیٹس ویری اسمارٹ یونیفارم. یہ بڑی اچھی یونیفارم ہے. بٹ آئی پریفر دا ون آف دا میٹل. میں نے میٹل کی بنی ہوئی یونیفارم کو پسند کرتا ہوں. یعنی پرانے زمانے میں میٹل کی ہوتی تھی نا, زرا جو اس کو ہم کہتے تھے, میٹل کی شیٹس ہوتی تھیں. the one you used to wear, جو تم پہنا کرتے تھے پاسٹ میں, you know with the feather on top, جس کے اوپر جو نا پر لگے ہوتے تھے. feather on the top, یہ پرانے زمانے میں جو یونیفارمز ہوتی تھی اس پہ پر ہوتے تھے جو ڈسٹنکشن کی علامت ہوتے تھے. ظاہر تھا میڈل تو ہوتے نہیں تھے یا وہ کراؤنز ہوتے نہیں تھے پہننے کے لیے, تب اس طرح سے ڈسٹنکشن رکھی جاتی تھی لوگوں کے, وہ ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے پروں کا استعمال کیا جاتا. دیٹ واز 500 years ago. 500 سال پہلے کی بات. اس کے بعد ہے Are you sure you are not from the earth? کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ زمین سے نہیں ہو؟ Yes, I am not. I am not. You have got some pretty tall explaining to do. آپ کو کافی اچھی خاصی یا آپ تھوڑی لمبی وضاحت دینی پڑے گی. پریٹی کا مطلب لمبی وضاحت دینی پڑے گی to do so, ایسا کرنے کے لیے. Anything you to oblige, آپ کو مشکور کرنے کے لیے یا آپ کی کیا ہوگا, آپ کی oblige کرنے کے لیے, آپ کو مشکور کے بنانے کے لیے کچھ بھی. All right, which planet? اچھا بتاؤ کون سے سیارے سے. وہ کہتا ہے nothing that you have ever heard of it. تم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا. تم نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا. Where it is, یہ کہاں پہ ہے. You wouldn't know, تمہیں پتہ نہیں چلے گا. کہتا ہے solar system, اسی solar system سے. No, another system. Yes, لوگ بسٹر او بیروپی ہے. بات سن,
बेरुपे का मतलब प्रिटेंडर होता है जो पोज करता है, यानी एक्चुअल नहीं होता, फ्रॉड होता है. आई डोंट वांट टू प्ले गेम्स, मैं खेल नहीं खेलना चाहता. आई जस्ट वांट टू नो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वेयर यू आर फ्रॉम, तो तुम कहाँ से हो. द लॉ रिक्वायर्स, कानून इस बात का तकाजा करता है कि तुम कहाँ से हो, ये जानना चाहता है. अब यहाँ पे देखिएगा जी, हमने देखेंगे अब कि कौन सी ग्रामेटिक स्ट्रक्चर है. अब देखें 200 हो तो इसके साथ ईयर्स ही आएगा, और 1 हो तो हो तो तब भी 100 ईयर्स अगो, तब भी वही होगा 100, और 1 हो तो तब भी 100 ईयर्स होगा. इन 100 के साथ चूंकि हम एस नहीं लगाते, और ईयर जो है वो 1 के साथ नहीं है बल्कि 100 के साथ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसके साथ हमने प्लूरल नाउन इस्तेमाल करना है. और उसके बाद है जी, हमने देखा सॉ हिम, सिंस वर्ब के बाद हमने जब क्या हो, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. जैसे क्या होगा, आई सॉ हिम एंटर या एंटरिंग द रूम, रूम हो जाएगा, लेकिन नॉट नहीं लिखेंगे, टू एंटर द रूम नहीं लिखेंगे. उसके बाद है जी लुक एट, सामने वाली चीज को देखना, लुक एट हो गया. लेट एनीबडी, किसी काम करने से रोकना किसी से, जैसे आई डोंट लेट हिम, क्या होगा, एंटर. यहाँ पे लेट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, इसको एंटर नहीं होने दिया. उसके बाद है जी उसके बाद प्रेटी टॉल एक्सप्लेनिंग, वो काफी लंबी वजाहत करनी पड़ेगी आपको. प्रेटी का मतलब थोड़ी और टॉल लंबी. प्रेटी के दो फंक्शन होते हैं, शी इज प्रेटी, यहाँ पे ये है एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या होगा, इट इज प्रेटी या शी इज प्रेटी लेट, इज प्रेटी लेट. अब यहाँ पे लेट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो जब लेट के मीनिंग में इजाफा करे तो ये एडवर्ब हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करेगा, तो इसके साथ हमने वो लगाना है इज प्रेटी लेट. तो ये एडवर्ब, यहाँ पे ये एडवर्ब के फंक्शन, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है. यूज टू वियर तो हमने पता है कई दफा किया करता था, और प्रेटी टॉल हो गया. और यू वेयर यू आर फ्रॉम, ये भी हमने पढ़ा. जब हमने क्या करना है कि जब स्ट्रक्चर क्लॉज का स्ट्रक्चर होगा तो यू पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में चला जाएगा. जी बच्चों, नेक्स्ट अब जरा आ जाए जी सेंटेंसेस पे, और अगर कोई सवाल है तो पूछ लें. 100 years. 100 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है. Move about. आई फाउंड हिम, मूविंग हो जाएगा. फाउंड के साथ क्या लगाना, हमने मूविंग लगाना जी. कॉमन फॉर्मल सिचुएशन में हम फेयरली लार्ज इस्तेमाल करते हैं, प्रेटी लार्ज इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है. और वेरी काइंड ऑफ यू या प्रेटी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ, Pretty good. वेरी Very काइंड kind. Pretty. और उसके बाद प्रेटी गुड या वेरी गुड, ये Very वेरी good. गुड होगा प्रेटी इसके साथ. ये तीनों एक्सप्रेशन जो हमने पढ़े, काइंड, प्रेटी, गुड, और किसी फॉर्मल सिचुएशन में प्रेटी का इस्तेमाल नहीं करते जी. इट इज पॉसिबल दैट आई कुड एक्सप्लेन इट टू अ मैथमेटिशियन, मुमकिन होता है अगर मैं किसी रियाजी दान को, मैथ वाले को बताता. आई एम अफ्रेड आई कुडंट एक्सप्लेन इट, मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता टू यू. एंड फॉर अंदर 500 इयर्स, 500 साल तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता. एंड बाय देन ऑफ कोर्स यू वुड बी डेड, फिर आप मर जाओगे, बिकॉज यू पीपल डू डाई, तुम जरूर मरते हो. ये सेमी मॉडल वर्ब है, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में डू डाई यानी डू का इस्तेमाल करते हैं, डू डस या डेड का इस्तेमाल करते हैं. डू डोंट शो व्हाट, क्या, पुअर फ्रेजाइल ब्यूटीफुल, बेचारी कमजोर तितलियां, यानी इंसानों को वो कमजोर तितलियां कहता है क्योंकि वो मर जाने वाली हैं, यानी वो मैन इज मॉर्टल. तो व्हाई डस या व्हाई डिड
he call human fragile butterflies? Fragile butterflies क्यों कहता है? Why did he call poor fragile butterflies? वो क्यों कहता है? क्योंकि वो ब्रीफ उसके मोमेंट्स हैं या शॉर्ट लाइफ स्पैन है उसका, इसलिए उनको वो पूर फ्रेजाइल बटरफ्लाई कहते हैं. सच लिटिल मोमेंट्स इन द सन, इन सूरज के सिस्टम में बहुत ही थोड़ा सा वक्फा. इन द सन मतलब इस निजाम शमसी में. You see, we don't know. अब ये अगले क्रेटन की जब क्वालिटीज की बात करेंगे तो उसमें ये भी होगा कि वो इमॉर्टल है. You will die all right, तुम जरूर मरोगे. फिर turns out, अगर पता चले, turn out का मतलब होता है पता चलना, expose हो जाना. You are a spy, तुम या जासूस हो, डिटेक्टिव एजेंट हो, या hostile या मुखालिफ, ओपोनेंट, एलियन हो, स्ट्रेंजर हो. एलियन से बरात आउटसाइडर या स्ट्रेंजर को कहते हैं. आई एम श्योर यू वुडंट बी सो क्रूअल, मुझे यकीन है कि आप इतने जालिम नहीं होंगे. एड जो उसका नाइब है वो रिटर्न होता है. ही लुक्स डिस्टर्ब, वो परेशान दिखाई देता है. व्हाट डिड यू फाइंड, वो तुमने क्या मिला? I'm not so general, general parts heavily जोर देते हुए. Then do what you best to describe what the object is like. फिर आप ये बयान करने की कोशिश करो कि चीज कैसी दिखती थी. वो उसको बताता है. अब अगला पॉइंट, अगला सवाल आ गया कि what was the shape of how did the spaceship look? spaceship कैसी दिखती थी? ये spaceship कैसी नजर आती थी? स्पेसशिप कैसी नजर आती थी? पहला कहता है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करो. एलिप्टिकल है पहला पॉइंट, यानी ओवल शेप है, 14 फुट डायमीटर है, मेड ऑफ ऑन मेटल की बनी हुई है, शाइनिंग करती है, अंदर कोई भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट पैनल बिल्कुल ही भी है, पावर इजंट एनीथिंग नहीं है. एट देयर इज नथिंग एनीथिंग इनसाइड द शिप, उसके अंदर कुछ भी नहीं, नो इंस्ट्रूमेंट, नो फूड, नथिंग. पावर टू क्रेटन. व्हाई डिड यू डू विद दैट, आपने ये सब कैसे कर लेते हो? डू विद का मतलब होता है यूज करना, कैसे कैसे ये सब कर लेते हो, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, तुम्हारा पैनल कहाँ गया? क्रेटन विद माई व्हाट, क्रेटन ने कहा कि क्या मेरा, वो पूछता है मेरा क्या नहीं है, वो बताता है क्या होगा इंस्ट्रूमेंट बोर्ड. क्रेटन विद माई व्हाट, ओ आई डोंट हैव वन, मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है, मैं बोर्ड उसमें नहीं है. पावर, हाउ डज द थिंग ट्रेवल, तो फिर ये चीज कैसे चलती है? क्रेटन आई डोंट नो, कहता मुझे नहीं मालूम. पावर, यू डोंट, पावर कहता है यू डोंट नो, तुम्हें नहीं मालूम. अब यहाँ पे स्पेसशिप कैसे दिखती है, ये हमारा सवाल था, वो हमने कर लिया. आप जरा आ जाए जी. टर्न आउट का मतलब एक्सपोज हो जाना, पता चलना, और हा स्पाई और आ होस्टाइल ने एलियन, आ के साथ हमने दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ जो है हमने टर्न आउट का मतलब एक्सपोज हो जाना, ये शो होना होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है जी सो क्रूअल, मुझे उम्मीद है कि आप इतने क्रूअल नहीं होगे. ये कंपाउंड नाउन जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आखिरी नाउन को प्लूरल बनाते हैं, उससे पहले वाले को सिंगुलर ही यूज करेंगे. जैसे अगर 10, अगर क्या होगा, 10 फीट है तो फिर 10 फीट होगा, ज्यादा नाउन है. अगर 10 रोप लगाना है तो फिर 10 फुट रोप हो जाएगा. इसी तरह से 5 कार है, कार्स हो जाएगा. अगर 5 कार व्हील्स है तो फिर व्हील्स के साथ एस लगाना है. और अगर 5 कार व्हील कवर्स है तो फिर कवर के साथ एस लगाना है. यानी कि जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे इनका एस जो है ना वो आगे ट्रांसफर होता जाएगा, एंड पे चला जाएगा. इज मेड ऑफ एन अननोन मेटल, अच्छा ये हो गया. ये ग्रामर का स्ट्रक्चर कहता है. डू विद का मतलब इस्तेमाल करना, किसी चीज को उसको हम कहते हैं व्हाट डू विद, तुम इसके साथ क्या करते हो. जी बच्चों नेक्स्ट वाला करेक्शन करनी है जी आपने. और फ्री में फ्री में जी. he was a spy. ही टर्न्ड आउट है, Was टर्न आउट बजाते खुद पता चल रहा है, होने का मीनिंग दे रहे हैं, इसके साथ टर्न आउट लगाना है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही वॉज हो जाएगा. नेक्स्ट वाला.
3 टीस्पून फुल्स हो जाएगा, स्पून जो 3 के साथ नाउन प्लूरल लगाना है तो पून स्पून फुल हो जाएगा। और उसके बाद ग्रुप्स 3 ग्रुप्स हो जाएगा, लेकिन क्या होगा 3 पासर बाय ग्रुप हो जाएगा, फिर एस नहीं लगाएंगे उसके साथ, पासर बाय ग्रुप हो जाएगा, उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है नाउ लुक मिस्टर यूर प्रेटी सीरियस ट्रबल। अब तुम क्या होगा काफी मुसीबत में हो। आई सजेस्ट यू डू अ बिट कोऑपरेटिंग। मैं आपको मशवरा यही देता हूँ कि आप थोड़ा ताउन करो हमारे साथ। यू क्लेम यू ट्रेवल हियर फ्रॉम आउटर स्पेस। आपने दावा करते हो कि आप यहाँ पे आए थे, ट्रेवल किया फ्रॉम आउटर स्पेस इन अ मशीन में, नो इंस्ट्रूमेंट जिसमें। उसके बाद क्रेटन, वेल दीज कार्स आर रादर कॉमन इन माय वर्ल्ड। ये कारें मेरे दुनिया में आम मामूल की बात है, इन माय वर्ल्ड। एंड आई सपोज वंस अपॉन अ टाइम आई मस्ट हैव नोन द theory। मुझे उस नजरिए का भी पता था जिस पे चलती थी, ऑन द ऑपरेट, बट आई हैव लॉन्ग सिंस फॉरगॉटन। लेकिन अरसा हो गया मुझे भूले हुए। आफ्टर ऑल जनरल वी आर नॉट मैकेनिक्स, हम मैकेनिक्स थोड़ी हैं। यू एंड आई पावर कहता है रॉजर यू डोंट यू माइंड इफ यू यूज योर स्टडी, हम आपका मुताले का कमरा इस्तेमाल करें। स्पेलिंग नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल जनरल पावर। मिस्टर क्रेटन एंड आई आर गोइंग टू हैव अ चैट। हम ये क्या होगा बातचीत करने वाले हैं। 8 से कहता पुट इन कॉल टू चीफ ऑफ द स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कॉल मिलाओ। पुट इन का मतलब होता है कॉल मिलाना भी होता है, पुट इन का मतलब बीच में मुदाखलत करना भी होता है। 8 यस जनरल स्पेल्डिंग राइजेस और लीड्स क्रेटन और पावर इनटू नेक्स्ट रूम और हैंडसमली फर्निश्ड स्टडी है, बड़ी खूबसूरती से सजे हुए वो स्टडी है। और उसके बाद है जी मैनी बुक्स हैं, ग्लोब ऑफ वर्ल्ड है, स्पेल्डिंग दिस वे जेंटलमैन उसको कहता है। क्रेटन सिट्स डाउन कंफर्टेबली बिसाइड अ ग्लोब के साथ, विच इट वर्ल जिसे वो घुमाता रोटेट करता थॉटफुली, सोचों में पड़े हुए। एट डोर स्पेल्डिंग स्पीक्स इन लो वॉइस टू पावर कहता है आई होप आई विल बी द वन टू गेट द स्टोरी फर्स्ट। टॉम मैं ही पहला शख्स होऊंगा जो इस कहानी को रिलीज करेगा। पावर देयर इज नॉट एनी स्टोरी, कोई कहानी नहीं, कंप्लीट सेंस से मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। अब जरा आ जाए जी इस पे, हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे आ जाए तो बनेगा यहाँ पे हमारे पास जब हमने सब्जेक्ट वर्ब मूड इस्तेमाल करना हो तो वहां पे हम आई सजेस्ट दैट शी विजिट हियर, वो यहाँ पे आए। उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब जैसे इट इज रिकमेंडेड दैट ही वर्क हार्ड, वो काम मेहनत करे। तो इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ यूज करेंगे हम। उसके बाद है जी, उसके बाद देखिएगा यू ट्रेवल, यू क्लेम, यू हैव ट्रेवल्ड होना चाहिए था, क्योंकि जब आपने लगाते हैं ये क्लेम आप अब कर रहे हैं और जो ट्रेवल किया वो उससे पहले हो चुका है, तो इसके रेफरेंस से प्रेजेंट के रेफरेंस से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू हैव ट्रेवल्ड हो जाएगा। अब सिंस फॉरगॉटन, ये असल में आई हैव लॉन्ग सिंस आई हैव फॉरगॉटन होना चाहिए। सिंस के साथ हमने वर्ब नहीं लगा सकते, सिंस चूंकि प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है तो इसके साथ हमने नाउन लगाना है या क्लॉज लगाएंगे। सिंस आई हैव फॉरगॉटन होना चाहिए, सिंस आई फॉरगॉट होना चाहिए, इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। अब अकेला आए होता तो उसके साथ हमने एम लगाना था। अब मिस्टर क्रेटन और आए आ गया, 2 लोग हों तो फिर हम उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। पुट इन का मैंने बता दिया, इसका मतलब मुदाखलत करना भी होता है। और उसके बाद क्या होगा, मुदाखलत करना भी होता है। और उसके बाद इससे मुराद क्या होता है, किसी को कॉल मिलाना, उसको भी पुट इन कहते हैं। अब यहाँ पे आपने इन सेंटेंसेस को देखना है और ठीक करना है। कमान जी, I have to take शाबाश। सिंस आई स्टार्टेड टेकिंग हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, अदरवाइज सिंस के साथ हम वर्ब डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्योंकि सिंस का फंक्शन प्रेपोजिशन का फंक्शन है। जी नेक्स्ट वाला, since I have been taking. आई हैव बीन टेकिंग हो जाएगा।
she live she live here हो जाएगा क्योंकि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और उसके साथ नेक्स्ट है जी, आई एम सॉरी बट दिस हाउस इज अंडर मार्शल लॉ। ये घर जो ना मार्शल लॉ के कंट्रोल में है। आई हैव हंच, मुझे मेरा आइडिया है, वी आर इन ट्रबल, हम मुसीबत में हैं। इस शर्त से वो दरवाजा बंद करता है, स्पेल्डिंग रिटर्न्स, मुड़ता है, रीजॉइन हिज फैमिली। एलन कहती है आई थिंक ही इज अ वंडरफुल, जो भी है whoever he is। मिसेस स्पेल्डिंग जो है ना कहती है आई वंडर हाउ मच डैमेज ही डिड टू माय रोज गार्डन। उसने मेरे रोज गार्डन को कितना नुकसान पहुंचाया। जॉन इट इज श्योर हार्ड टू बिलीव ही इज रियली फ्रॉम आउटर स्पेस। लगता नहीं है कि किसी आउटर स्पेस से है। नो इंस्ट्रूमेंट नो नथिंग बॉय, दे मस्ट बी एडवांस, साइंटिफिक लगता है ये बहुत एडवांस होंगे। स्पेल्डिंग इज ही स्पेंडिंग नाइट देयर, आज रात इधर रहेगा वो। स्पेल्डिंग कहता व्हाट, स्पेल्डिंग इज ही स्पेंडिंग द नाइट, ओह यस यस आई सपोज ही विल, वो यहाँ पे होगा जी। अब जरा देखिएगा जी, नेक्स्ट वाला सेंटेंसेस में आपने सिंपल से सेंटेंसेस हैं, आपने करने हैं, क्या बनेगा, सिंस यू लास्ट फोन्ड, तो क्या आ जाएगा, हैज बिन आ you जाएगा जी। उसके बाद as you may recall the Paris office assisted with the project since, अभी यहाँ पे assist नहीं आएगा, जब since it started आ गया तो फिर has assisted हो जाएगा। इस तरह से आपके is employed नहीं होगा क्योंकि since September आ गया तो has been employed हो गया। और अब यहाँ पे know each other नहीं होगा क्योंकि since they were at primary school से है तो had known हो जाएगा। We want the office to start operating, क्या होगा, यहाँ पे since now नहीं लगाते, ये since now इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि from now लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इट जानी, इसका मतलब है कि कौन से टेंसेस में, जहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो, जहाँ पे फ्यूचर टेंस हो, जहाँ पे जनरल वो रूटीन हो, वहां पे हम यूज करते हैं सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर टेंस में, जनरलाइज ट्रुथ में, और उसके अलावा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो इनका इस्तेमाल करते हुए ये ज़हन में रखना है। नेक्स्ट है जी पर्पस ऑफ स्केलेटन विजिट। अब जरा सुनिएगा आप लोग, so that we may complete earlier। पर्पस हमारा, द पर्पस ऑफ क्रेटन विजिट, क्रेटन स्टडी, या द पर्पस ऑफ क्रेटन इज टू स्टडी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, और वाज टू स्टडी ह्यूमन सिविलाइजेशन, क्योंकि पास्ट में पूछा है तो वाज टू स्टडी होगा। He wanted to study, he was interested, he got delighted। और प्रेजेंट में आ जाए तो is to study, wants, is interested और gets delighted। क्या है जी, अर्थ के बारे में क्या रिवील करता है, he reveals that। अब प्रेजेंट में सवाल है, इसको प्रेजेंट में करना है क्योंकि ये, वरना ये पास्ट में ये कंफ्यूजन हो जाएगी। He reveals that the earth has 5 continents, there is mostly water on it, it has 1 moon, other civilization is at earlier stage। जनरल पावर कौन सा है, he is a vigorous product of national guards, he is responsible for security, he is ambitious and wants आ जाएगा यहाँ पे, और his character is contrasted to Creighton's character। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, ह्यूमन बीइंग को फ्रिजाइल बटरफ्लाई क्यों कहता है। ह्यूमन बीइंग कौन है मॉर्टल जी, ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, दे हैव ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइफ, their life is, yeah, they have uncertain life, that's why Creighton called him we called them poor fragile butterfly। spaceship कैसी दिखती थी, it was equal to size of a car, it was oval shaped, it was made of, और it had 14 foot diameter, और it had no control panel inside। martial law क्या है, it is a law in which army takes over the management in case of emergency। और क्या होगा, किसने इम्पोज किया, पावर्स, जनरल पावर्स इम्पोज मार्शल लॉ, और ही बैंड कम्युनिकेशन लिविंग द हाउस, उसको सभी को बैन कर देता है वो। नेक्स्ट जी स्लाइड, कमान जी आपने करना है, कमान बच्चों, लास्ट 2 मिनट्स। द ज्यूरी इज या आर डिवाइडेड,
جب ڈیوائیڈڈ ہو جائے جی تو وہاں پہ آر کا استعمال کرنا، جب ایگریمنٹ میں ہو تو پھر آپ نے اس لگانا ہے. اور اس کے بعد کلاس جب ٹیسٹ دے رہی ہے، کلیکٹیو دے رہی ہے، کیا ہوگا اس آر از ٹیکنگ جی از ٹیکنگ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے نا میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ بند رکھے مائک. اس کے بعد جو ہے نا 6 مائلز یہاں پہ جب ایز اے یونٹ ایکٹ کر رہی ہے تو پھر لانگ ڈسٹینس کو شو کرنے کے لیے لگائیں گے ہم. 20 روپیز جب ایک اماؤنٹ کو شو کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم استعمال کریں گے سنگل والا. ایلیز پین جب ہم نے کوئی پرسن ہوتا ہے اس کی پوزیشن کے لیے اپوسٹروفی ایس لگاتے ہیں. اس کے بعد ریڈیو سپیکر نہیں ہوگا، دا اسپیکر آف ریڈیو ہوگا، کیونکہ پوزیشن کے لیے ہم کمپاؤنڈ نون استعمال نہیں کرتے. اس کے بعد جب پہلے ہی ایس ساؤنڈ آ جائے تو وہاں پہ ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈاکٹر ہاسپٹل ہو جاتا ہے. چیف جسٹس پار ہے، پہلے ہی سا ساؤنڈ آ گئی ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو لگانے کی. اور لاسٹ ون ہے جی دا بک آر یورس ہوگا، اپاسٹرفی کے ساتھ ایسے استعمال نہیں کریں گے. یہ تھا آج کا لیکچر. اف دیر از اینی کوسچن یو کین آسک. اللہ حافظ.